کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کو بہت بہت سلام۔ آج سنڈے کا دن ہے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ لوگ خداوند کے گھر اور خداوند کی حضوری میں آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ پرستش کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے، اور ان دونوں نوجوانوں نے اور ان کے ساتھ میوزیشنز نے بھی بہت زبردست بجایا ہے۔ سو ہم نے خداوند کے حضور میں پرستش سے برکت پائی، سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو وقت ہے کہ ہم خداوند کا کلام سنیں۔ ہلیلویہ۔ وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کے گھر میں، خدا کی بارگاہوں میں، خدا کی چوکھٹوں پر آتے ہیں۔ شیطان نے اور ابلیس نے لوگوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے، لوگ اپنے سارے کام 2 دنوں میں رکھیں گے۔ یا رکھیں گے ہفتے والے دن، تو ہفتے والے دن رکھنے سے رات دیر تک ان کے پروگرام چلیں گے، تو دوسرے دن سنڈے کو صبح ان کی کیا نہیں کھلتی ہے، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، وہاں پر یوحنا عارف کہتا ہے میں خداوند کے دن کس میں آ گیا؟ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا۔ دن تو سارے ہی خداوند کے ہیں نا، چاہے جمعہ ہو ہفتہ ہو، لیکن خاص کر سنڈے کا دن جو ہے، یہ کون سا دن ہمارے نزدیک کہلاتا ہے؟ یہ خداوند کا دن اور سبت کا دن کہلاتا ہے۔ سو یاد رکھیے، خدا کے گھر آیا کرے اور باقاعدگی کے ساتھ آیا کرے۔ کپڑے باقی سارے دنوں میں بھی دھل جائیں گے، باقی سارے کام دنیا کے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک بہن سے کہا بہن جی چرچ نہیں آئے سنڈے میں، وہ بھائی جی مشین لا لی سی۔ آپ بتائیے دنیا کے کام کبھی ختم ہوئے ہیں؟ نہ ہوئے ہیں، اور نہ دنیا کے کام کبھی ختم ہوں گے۔ آپ کے نزدیک یا آپ کے کام آنے والی چیز، جو آپ کے کام آخرت میں بھی آنے والی چیز ہے، وہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے۔ ایک اور آخر میں بات کروں گا، جو بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں آتے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آپ کہیں گے وہ ہماری سنتے مانتے نہیں ہیں۔ آپ انہیں شاپنگ کے لیے سنا کے منا کے لے جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ سسرال میں وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ سسرال میں کوئی بھی پروگرام ہو جائے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مرنے جینے پر آپ کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر یہ سارے کاموں میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہے تو کیا خیال ہے آپ ہفتے والے دن ان کے کپڑے پریس کر کے تیار کر کے پورا ہفتہ اپنے تیار کرتے رہیں کہ سنڈے کو یا کسی بڑی عبادت میں، یہ چرچ کی کسی عبادت میں جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کے کہنے سے بھی خدا کے گھر میں آ سکتا ہے۔ آمین۔ سو آج ایک اور بھی شکر گزاری ہے، ایلڈر عارف صدیم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ کل رات کو ہی لاہور سے کراچی پہنچے ہیں، اور آج صبح نے دیکھ کر خدا کی حضوری میں میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں چاہوں گا بزرگوں آپ لوگ اپنی جگہ پر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایلڈر عارف صدیم کی والدہ اور والد لاہور میں ہیں، پر چونکہ کل پرسوں ان کی کڑمنی کی ڈیتھ ہوئی اور یہ کل جنازے پہنچے، شکریہ جی، اور یہ خدا سے بے حد پیار کرنے والے ہیں۔ سو ہم ان کے شکر گزار ہیں جو ہمیشہ وہاں لاہور میں رہ کر بھی آپ لوگوں کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہم ایسے بزرگوں کے اور ایسے ان سارے لوگوں کے خدا کے حضور میں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں جو ہمیشہ خدا کے خادموں اور کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ آمین۔ بائبل مقدس کے 2 عہد نامے ہیں، ایک عہد نامہ ہے پرانا اور ایک عہد نامہ ہے نیا۔
पुराना अहदनामा भी पैदाइश की किताब से लेकर मुलाकी की किताब तक जो पुराना अहदनामा है, ये सारा का सारा खुदा का जिंदा कलाम है। और इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है, अगर कोई इस किताब में लिखी हुई कोई बात को घटाए या इस किताब में लिखी हुई बात को कोई बढ़ाए तो सारी की सारी आफतें उस पर नाजल होंगी। आपको कोई किताब समझ में आए या ना आए, कोई आयत आपको समझ में आए या ना आए, और ये याद रखिए पुराना अहदनामा खुदा का जिंदा कलाम है। कुछ लोगों का कहना यह है कि हम पुराना अहदनामा पढ़ते ही नहीं है, और हमें पुराना अहदनामा भी पढ़ना है और हमें नया अहदनामा भी पढ़ना है। पुराने अहदनामा में आपको खुदा बाप यहोवा खुदा काम करता हुआ नजर आएगा, खुदा का रूह काम करता हुआ नजर आएगा, खुदा का कलाम काम करता हुआ नजर आएगा। नए अहदनामा में खुदा का बेटा यीशु जो नबियों की पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए इस जमीन पर आया। एक दौर बादशाहों का रहा, फिर दौर नबियों का, जैसे पुराने में नबियों का दौर रहा, नबियों से दौर चला तो बादशाहों का दौर आया, जिसमें साउल बादशाह का जिक्र, दाऊद बादशाह का जिक्र, सुलेमान बादशाह का जिक्र। फिर एक दौर कासियों का भी आया, कज़ात की किताब में कासियों का दौर भी आया है, और सैमुअल नबी को भी खुदा का नबी भी कहा जाता है और उसे इसराइल का काजी भी कहा जाता है। वो इसराइल का काजी भी है, इसराइल का नबी भी है। फिर आया तवारीख की किताब का दौर, जो सारे बैकग्राउंड को फलां से फलां, फलां से फलां, उससे ये पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ, नस्ल नामों की किताब तवारीख की किताब को कहा जाता है। पर आज जिस किताब पर हम गौर करने जा रहे हैं वो किताब है सलातीन की किताब, और ये किताब भी बादशाहों के दौर की किताब है, और जिसमें पहली किताब में आपको एलिया का जिक्र मिलेगा। एलिया मर्द खुदा है, अगरचे इसका यह मतलब नहीं कि उस वक्त के जमाना में खाली एलिया ही नबी था, नौ बेशुमार लोग थे जो खुदा के सच्चे गवाह और खुदा के सच्चे परस्तार थे, जिसका जिक्र पहला सलातीन 19वें बाब में मिलता है। जब खुदा ने एलिया से कहा बाहर निकला, तू यहां क्या करता है, तो वो ये कहता है कि मुझे तेरे नाम की बड़ी गैरत आई है। आखी एसीबल ने कह दिया, तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगी, मैं यहां छुप गया, मुझे तेरे नाम की बड़ी गैरत आई है। खुदा ने कहा बाहर आ। कहने लगा मैं अकेला बचा। खुदा ने कहा नहीं एलिया, अभी भी, जवाब दीजिएगा, अभी भी कितने लोग, कितने लोग, 7,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बैल के आगे घुटने नहीं टेके और जिन्होंने बैल के मस्बा को नहीं चूमा है। 7,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं और मंजरे आम पर नहीं आए, पर मैं उन्हें जानता हूं, मेरे कलाम से प्यार करने वाले हैं। मैं जानता हूं मेरे कलाम के पीछे चलने वाले हैं। मैं जानता हूं मेरे कलाम की फर्माबरदारी करने वाले हैं। 7,000 लोग अभी भी ऐसे हैं। सो एलिया वो है जिसे खुदा ने बुलाया है, जिसे खुदा ने चुना है, जिसका खुदा ने चुनाव किया है। आमीन। उस वक्त के जमाना में एलिया था और आज के जमाना में मैं और आप हैं। एलिया की दुआ से आसमान खुल सकता है, तो आज मेरी और आपकी दुआ से भी आसमान जो है वो खुल सकता है। एलिया की दुआ से मौत से हो सकते हैं, तो आज याद रखिए मेरी और आपकी दुआ से भी खुदा बड़े बड़े मौत से कर सकता है। उस वक्त तो एलिया कहता है कि खुदावन की हयात की कसम
जिस के आगे मैं खड़ा हुआ हूं, जब तक मैं ना कहूं ना मी ना बरसाएगा, ना एलिया की दुआ का जवाब देने वाला है। आज मेरे बहनों भाइयों, हम सारे जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपका ईमान यीशु पर है, आप उसके कलाम पर ईमान लाने वाले हैं, आप यीशु के नाम को जानते हैं, आपने तौबा की हुई है, आपने निजात पाई हुई है, तो याद रखिए आपकी दुआ से भी बहुत कुछ खुदा करने की कुदरत रखता है। आपकी दुआ से खुदा बीमारों को शिफा देगा। आपकी दुआ से जकड़े बंधे हुए लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे। खुदावंद आपकी दुआ से भी आप बेड़ियों को तोड़ेगा, दरवाजों को खोलेगा, दास जंजीरों को तोड़ेगा, डाक कैदियों को आजाद करेगा। अगर आप दुआ करने वाले हैं, आपकी दुआ आपके घर को तब्दील करके रख देगी। आपकी दुआ आपके शौहर को बदल कर रख देगी। आपकी दुआ आपकी औलाद को तब्दील करके रख देगी। नहीं तो किसी वक्त ये आजमा लीजिए, घर के अंदर जो फसाद पड़ा रहता है, घर के अंदर जो खराबियां पड़ी रहती हैं, ठीक नहीं होती, दूर नहीं होती, दाका मसबा अपने घर में लगाना शुरू कीजिए। दाका मसबा अपने घर में लगाना शुरू कीजिए। किसी जगह पर ऐसी जगह बनाइए जहां आप घुटने टेकते हो, जहां आप दुआ करते हो, आप घुटने टेकते हो, आप दुआ करते हो। और याद रखिए, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का असूल है। लोगों ने जंगलों में भी, लोगों ने बियाबानों में भी पत्थर रखकर खुदा का मसबा बनाया। और जब उन्होंने पत्थर रखकर खुदा का मसबा बनाया, उसके ऊपर कुर्बानी रखी। आप बताइए आसमानों से आग आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए आसमानों से आग आई थी कि नहीं आई थी? चले मैं मुख्तसर बता देता हूँ। जब मर्द नूह कश्ती से बाहर निकला है, तूफान थम गया है, पानी थम गया है, पहले उसने कौवे को भेजा है, वफादार था या नाफरमान था? बोला करे, न फरमा बरदार था या नाफरमान था? उसने उसको कश्ती से बाहर भेजा, जा भाई देख के तो आ जरा। गया वो बाहर, आंखों की ख्वाहिश उसके अंदर है, जिस्म की ख्वाहिश उसके अंदर है, जिंदगी की शेकी उसके अंदर है, खाना पीना सारी चीजें मिले। और एक चीज और उसके अंदर थी, कहने लगा शुक्र है कश्ती में था, बड़े अजाब में पड़ा हुआ था, कश्ती में था तो ऐसे लगता था कैद हूं, और अब मैं कश्ती से क्या हो गया? आजाद हो गया। अरे कश्ती का माहौल ऐसा माहौल है जहां खुदा की कुदरत है। कश्ती का माहौल ऐसा माहौल है जहां यहोवा खुदा का हाथ है। शेरे बबर वहां पर है, बकरी का बच्चा वहां पर है, अजदहा वहां पर है, खतरनाक जानवर वहां पर है, पर काटने और नुकसान पहुंचाने वाली फितरत उनकी बदल ही गई है। कोई किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा, पर ये बाहर निकला है, आजादी के लिए बाहर निकला है। ऐसी आजादी जो आपको खुदा के कलाम से दूर ले जाए, आपकी जिंदगी का सत्यानाश करके रखेगी। फिर सुनिए, ऐसी आजादी जो आपको खुदा के कलाम से दूर लेकर जाए, आपको आपके यीशु से दूर लेकर जाए, ऐसी आजादी आपका सत्यानाश करके रखेगी, आपकी रूहानी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगी। और ये कश्ती से बाहर निकला है। गौर कीजिए, बाइबल के अंदर इमसाल की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, काहिल अपने भेजने वाले के लिए, काहिल अपने भेजने वालों के लिए ऐसे है जैसे धुएं की तरह है। यानी इतना धुआं आंखों में है, सारा बदन तकलीफ के अंदर पड़ा हुआ है। काहिल अपने भेजने वाले के लिए इस तरह जिस तरह उसकी आंखों में धुआं, और काहिल अपने भेजने वाले के लिए इस तरह जिस तरह सिरके की तरह है। सिरका पिया नहीं जा सकता है, धुएं में बैठा नहीं जा सकता है। काहिल के हाथ पैगाम भेजना भी क्या है? ऐसा ही पैगाम है। कई लोगों को पैगाम दिया जाता है, जाके कहते हैं भाई ओ हो मैं की हो गया, मैं उठे जाके भूल ही गया, मेरी याद ही नहीं आया। कई बार इस तरह होता है। इसे भी कश्ती से बाहर भेजा गया है और इसे कहा गया है देख के ते तूने क्या करना है? वापिस आना है। पर इसे वापिस आने के लिए थोड़ी है, गया ऐसा गया, फिर ये दोबारा वापस नहीं आया। फिर मर्दे ने एक कबूतरी को लिया है और उसको उड़ाया है। पहले वो गई है, उसने अपने पंजे के टिकने की जगह नहीं पाई है, वापिस आई है।
जब वो वापस आई है फिर दोबारा उसे चंद दिनों के बाद भेजा गया है। जब वो दोबारा गई है तो उसकी चोंच के अंदर क्या है? क्या है? उसकी चोंच के अंदर ताजा जैतून की पत्ती उसकी चोंच के अंदर है। वो मर्द नूह के पास लेकर आई है। कौवे की तरह काहिल ना बन जाइए और कौवे की तरह काहिल नहीं होना चाहिए। हमें उस कबूतरी की तरह होना है जिसके मुंह के अंदर खुशखबरी का कलाम है, जिसके मुंह के अंदर तसल्ली का कलाम है, जिसके मुंह के अंदर ये पैगाम है। अगर आपने अमाल की किताब पढ़ी हो, वहां लिखा है बस तौबा करो रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या किए जाएं, और उसके बाद क्या है? और खुदावन के हजूर से वो ताजगी के दिन आए, जैसे उस कबूतरी के मुंह के अंदर ताजा जैतून की पत्ती है। ये खुदा की हजूरी, खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल की अलामत है। तो लिखा यह है जब तुम भी अपने गुनाहों से यू टर्न ले लोगे, अपने गुनाहों से टर्न करोगे। आज जरूरत दो तरह की है। एक जरूरत यह है कि दुनिया के लोगों को बताएं कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही नजदीक आने वाली है। एक कलीसिया को भी ये बात बार बार सिखाने की जरूरत है। आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको मसीह पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। मेरा मौजू किसी और सिमत की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी बातों को समेटता हुआ फिर उसी तरफ आऊंगा। मर्द नूह ने कश्ती से बाहर निकला है, कश्ती से बाहर आया है। 8 जाने हैं, कश्ती से बाहर आई है। इनको नजर आया दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। इस कश्ती के वसीला से खुदा ने मुझे बचाया है, मेरे घर को बचाया है। इसकी तशरीह मैं 2 तरीके से करता हूं। एक ये कश्ती जो है ये कलीसिया है, एक कश्ती ये कलीसिया है। अगर कोई कलीसिया के अंदर आएगा तो याद रखिए दुनिया में तूफान होंगे लेकिन वो महफूज रहेगा। दुनिया में बीमारियां होंगी, वो खुदा की कलीसिया के अंदर जो है वो महफूज रहेगा। एक कश्ती जो है ये कलीसिया की अलामत है, कश्ती कलीसिया की अलामत है। और दूसरे नंबर पर कश्ती जो है ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है। ये कश्ती यीशु मसीह है और मसीह की ये कुदरत है कि जो कोई मसीह के अंदर आ जाता है, जो कोई मसीह के अंदर आ जाता है उसकी फितरत बदल जाती है, उसकी जबिलत बदल जाती है, उसका चाल चलन बदल जाता है, उसका करैक्टर बदल जाता है। शोर करने की जरूरत नहीं है मैं बदल गया, मैं बदल गया, मैं बदल गई। शोर करने की जरूरत नहीं है मैं बदल गया, मैं बदल गया। अरे कलाम ये कहता है कि दरख्त अपने फलों से दरख्त पहचाना जाता है। जब आपकी जिंदगी में हकीकी यीशु आएगा या आपकी जिंदगी के अंदर हकीकी यीशु मौजूद होगा, आपकी जिंदगी फलदार होगी, आपकी जिंदगी बाबरकत होगी। अगर कोई कुछ कह भी देना, अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है, आपके लबों से यही बात निकलेगी, ओ उसने कह दिया तो कह दिया, चलो छोड़ो। आप यही कहेंगे कि खुदावंद इससे क्या कहे, माफ कर, जो कह दिया है। पर कश्ती यीशु मसीह को भी पेश करती है, कश्ती यीशु मसीह की भी अलामत है। अब तीसरी चीज, ये कश्ती आपकी अपनी जिंदगी भी हो सकती है। अगर यीशु कश्ती के अंदर है, अगर यीशु कश्ती के अंदर है, उसका कलाम कश्ती के अंदर है, जितने मर्जी तूफान क्यों ना उठे वो सारे तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। वो उसने कश्ती से बाहर निकला। कौन निकला? बोलोगे कौन निकला? भाई मर्द नूह निकला है। आप यहां हो या नहीं हो, या मैं भी नीरा रोला ही पांड्या? आपको जवाब देना चाहिए। मैं कर रहा हूं मर्द नूह की कश्ती की बात, वो कश्ती से बाहर निकला है। पता नहीं मैंने इंज लगता थोड़े उत्तर गल्लां लंघदियां पईयां। इसे यहीं पर वाइंड अप किया जाए है तो जवाब दिया करें ना। मर्द नूह की बात कर रहा हूं, कश्ती से बाहर निकला है,
उसने क्या किया, उसने पत्थर लिए और उन पत्थरों का उसने क्या बनाया, उसने मसबा बनाया। जब उसने मसबा बनाया, उसने पाक जानवरों को लिया, उसने पाक परिंदों को लिया, उनको बीच में उसने उस मसबे पर रखकर उसने क्या किया, ज़बा किया। तो उसकी खुशबू देखिए आसमान तक उड़ रही है। जो चीज मैं यहां पहले आपको बता रहा, एलिया की दुआ से मौत से हो सकते हैं। अगर आपके घरों में खुदा का मसबा लगा हुआ होगा और अगर मसबों पर खुदावन की कुर्बानी रखी हुई होगी, तो ये याद रखिए, चाहे जंगल हो, बियाबान हो, जहां पर भी क्यों ना हो, जहां पर खुदावन का मसबा बनाया गया है, अगर मसबा पर कुर्बानी रखी गई है तो मसबा पर हो गई है कि जो कुर्बानी रखी गई है उस कुर्बानी से आसमान से क्या आएगी, आग नाज़िल होगी। ये मर्द नूह के मसबे पर गई खुशबू जो है, ये खुदा तक पहुंच गई है, खुदा तक पहुंच गई है। सुनिए, खुदा का इरादा बदल गया है। सवाल आपके लिए यह है, आपके दुआ के मसबे कहां पर है? जब आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे ना, 6वां बाब 7वां बाब, तो उसमें मसीह की तालीम यह है कि तू जो कुछ भी करता है पोशीदगी से कर। अगर तू कुर्बानी गुजरानता है तो लोगों के सामने उसका नरसिंगा ना बुझवा कुछ करता है खुदावन के लिए, तो पोशीदगी में कर। रोजा भी अगर तूने रखा है तो किस तरह रखा है, पोशीदगी के अंदर रखा है। अपना मुंह धो, सर पर तेल डाल। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजेदार जाने और तुझे क्या दे, बदला दे। 6वां और 7वां बाब यही है कि पोशीदगी में कर। अगर तू इस हाथ से देता है तो इस हाथ को, और अगर तू दाहिने हाथ से देता है तेरे बाएं हाथ को पता भी ना चले कि तूने किया क्या है, दिया क्या है। भैया पोशीदगी के अंदर ये सब कुछ तूने करना है। और उसी सारी फहरिस्त के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर तूने दुआ करनी है तो कैसे तूने दुआ करनी है। दुआ करने का तरीका ये है, अपनी कोठड़ी में जा, तूने दरवाजा बंद कर लेना है और बैठ जा खुदा की हज़ूरी के अंदर। उससे कहिए जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, कहिए जब तक मेरी दुआ का जवाब ना आए, कहिए जब तक मेरी तुझसे मुलाकात ना हो, मैं इस मसबे से, मैं यहां से कोठड़ी से कभी भी उठकर बाहर है। आप करके तो देखें प्रैक्टिकल। लेकिन पता मसला क्या है, ये हमें चैन से बैठने, दुआ में बैठे तो बचता है, चर्च में बैठे तो बचता है, दुआ में कई खिदमत के लिए हो तो बचता है, और अगर ना उठाएं तो भी फिर इसकी बड़ा मसला बनता है। पता नहीं आपके लिए है यानी मेरे लिए तो बहुत है। भाई जी बड़े फोन किए, तुसा साडा फोन है, पर ये किसी को बैठने नहीं देता। जब आपने बैठना है दुआ में तो इसको करो बंद। और मुझे ऐसे लोगों पर भी बड़ा अफसोस होता है जो चर्च के अंदर आकर बाइबल के अंदर इसको रख के और कुरान कलाम इस पर लगे होते हैं। पता चल रहा है बाइबल खुली है लेकिन अंदर खाते कुछ और ही खुला हुआ है। फिर मुझे ऐसे लोगों पर भी बड़ी हैरानगी होती है जब वो चर्च में आए होते हैं और जरा सा फोन बजा नहीं है, वो उठकर बाहर भागे। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। फोन ना सुनेंगे, अटेंड ना करेंगे, व्हाट्सएप पर नहीं रहेंगे, फेसबुक पर नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पर ये याद रखिए, ये सारी चीजें आपको खुदा के जलाल से और उसके जलाल से महरूम कर देंगी। लोग दुनिया के कामों में खोए हुए हैं, मगन हैं। जरा गौर कीजिए, खुदा की हज़ूरी में वो कौन सा दिन और वो कौन सा वक्त था जब आपने अपने दिल में यह तहैया किया था
चलो एक और आपकी सहूलत की ये देता हूं। आप कहते हैं भाई साहब कमरा एक के आना जाना बड़ा है ते दुआ होंदी नहीं। ये चर्च के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। कोई नहीं भी जगह तो चर्च आ जाइए, खुदा के अकेले आ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए, जहां मर्जी आ जाइए। आप वक्त तो खुदा की हुजूरी में गुजारे। ये अंदाजा लगाइए उसके कलाम की कुदरत में आज भी कमी नहीं आई है। चाहे वो दौर अकीयत का हो, फिरौन का दौर हो, फिर सुनिए चाहे वो फिरौन का दौर हो और चाहे वो एजीबल और अकीयत का दौर क्यों ना हो, चाहे वो नबूकदनेस्सर का दौर ही क्यों ना हो, पर ये याद रखिए हमारे खुदा की कुदरत के अंदर कभी कमी नहीं आई है। फिरौन के दौर में भी उसने अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर किया है। फिरौन के दौर में भी उसने दुश्मनों को और गैर कौम को यह दिखा कर रख दिया है मूसा मिस्री जान जाएंगे। सुनिए मूसा मिस्री जान जाएंगे इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। फिरौन जान जाएगा कि इस्राएल का खुदा यहोवा है, इस्राएल का खुदा यहोवा है, इस्राएल का खुदा यहोवा है। वो जान जाएगा। रही बात नबूकदनेस्सर के दौर की, वो कहता है मैं लंबी चौड़ी मूर्ति बनाऊंगा और नरसिंगा फूका जाए और सारे मेरी मूर्ति को सजदा करें। 3 जवान ऐसे खड़े हो गए, कहने लगे बादशाह जीता रहे, हमने शरीयत में ये पढ़ा हुआ है, हमने कलाम खुदा में ये पढ़ा हुआ है, हमने कलाम खुदा में ये पढ़ा हुआ है कि खुदावन अपने खुदा के सिवा, और हमने कलाम में ये पढ़ा हुआ है कि खुदावन अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा। और इब्लीस यीशु को कहता है कि तू मुझे सजदा करे, ये सारी दुनिया की क्या है, ये सारी दुनिया की रंगरलियां क्या है, ये सब तुझे दे दूंगा। पर यीशु ने भी उसे कलाम ही सुनाया। लिखा है यीशु खुद कलाम खुदा है और उसको भी कलाम सुनाते हुए कह रहा है, लिखा है। वो कह रहा लिखा हुआ है, इब्लीस कह रहा लिखा हुआ है कि तू अपनी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। लिखा है। और यीशु क्या जवाब कलाम में से जवाब दे रहा है कि यह भी लिखा हुआ है कि खुदावन अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा। ये 3 यहूदी खड़े हो गए, बादशाह तेरी राय में रह रहे, तेरे मुल्क में रह रहे, पर जो कलाम कहता है वो कहने से कभी भी बाज है। जो कलाम कहता है कलाम बोलेंगे, कलाम पढ़ेंगे, कलाम पर चलेंगे और कलाम की फर्माबरदारी करेंगे। आमीन। अपने शागिर्दों को कह ये चुप रहे, ये क्या नारेबाजी लगा रहे हैं, होशाना होशाना। इनको क्या ये चुप रहे। पर मेरे और आपके मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? उसने उनसे ये कहा है अगर ये चुप रहेंगे तो बेजान चीजें जिनका कोई वजूद नहीं है, अगर तुम सारे चुप रहोगे, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ। कौन है जो गैर कौमों में भी खुदा का कलाम सुनाता है? कौन है? चंद लोग जो गैर कौमों को यीशु के बारे में बताते हैं, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अगर आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। आमीन। जहां जहां जाते हैं गौर करें कहां जाते हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो खुदा ये कहता है पत्थर चिल्ला उठेंगे, मेरी गवाही देंगे, मेरा तस्करा करेंगे, मेरे बारे में बताएंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वो ये कह रहे, एक का नाम सदरक मिशक और अब्दुल वजूह है,
سجدہ نہیں کریں گے. بادشاہ کو بتایا نا بھائی یہ 3 نوجوان لڑکے یہودی ایمان کے پکے، میں کہتا ہوں ایک مسیحی اگر پکا مسیحی ہو تو وہ اپنی دعا اور اپنی خدمت سے کئی بستیوں میں روح القدس کی آگ لگا سکتا ہے، پر یہ تو 3 یہودی ہیں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا ایک بھی کافی ہے. اس کا ذکر آپ کو اعمال کی کتاب میں ملے گا. ڈیکن ہو، ایلڈر ہو، مبشر ہو، رہنما کیوں نہ ہو، پاسبان کیوں نہ ہو، مسیح پر ایمان لے کر آنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، بندہ ایک ہی اکیلا کافی ہے. کہنے لگے یہ تو تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرتے. میرا پیغام یہ دور کوئی بھی کیوں نہ ہو، خدا ہر دور میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا ہے. ڈال دیے ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں. یہ سچا واقعہ ہے، آگ کی بھٹی میں ڈالا ہے. آگ کی بھٹی اتنی ہی تھی یا کوئی کم یا تیز بھی کی گئی تھی؟ لکھا ہے 7 گنا تیز کی گئی، اور اتنی تیز کی گئی تھی کہ جو جن لوگوں نے ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تھا وہ خود جل گئے اور وہ خود مر گئے. آگ کی تیزی اتنی ہے وہ خود مر گئے. ان تینوں کو ڈالا ہے، پر یہ یاد رکھیے دعا کرنے والے لوگ اور سب کچھ ان کے آگے بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور دعا کرنے والے لوگوں کے چہروں پر کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی ہے. اگر آ بھی جائے نا تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کے پیچھے خدا اپنا بڑا جلال ظاہر کرنے کو ہے. یہ جو مصیبت آئی ہے نا یہ میری زندگی کے لیے ایک بڑی گواہی بننے جا رہی ہے. آمین. کل پرسوں کی بات مجھے کسی نے کہا ایسا مصیبت نہیں ختم ہوتی، ایک موقع تو دوجی، ایک موقع تو دوجی. یہ کیسی خدا کی راہ ہے. میں نے ایک آیت ان کو زبانی دی اور آپ کو بھی دیتا ہوں. مکاشفہ 2:10 میں لکھا ہوا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف ہے. بھئی یہ راہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اس راہ کے اندر یعنی خداوند کی راہ میں، اس راہ کے اندر ہم نے دیکھا کئی بار اپنے بھی کیا ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے اپنے بھی ساتھ ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن نہ ڈریے، جو دکھ ہمیں سہنے ہوں گے ان سے کبھی خوف نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ جیتے ہوئے بھی یسوع کے ہیں اور مر جانے کے بعد بھی یسوع ہی کے ہیں. تو ہوا کہ ان کو ڈالو ہے. آپ کہیں گے آج تو کوئی آگ کی بھٹی میں نہیں ڈالے گا، لیکن شاید آپ کی مصیبت جو ہے یہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، آپ کی آزمائش آگ کی بھٹی کی طرح ہے. ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا. میں وہ واقعہ وقت کو بچانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پر اس واقعے کو دانیل کی کتاب میں پڑھیے. اس واقعے میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان تینوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ دیکھ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہم کو اس آگ کی بھٹی سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ڈالا بادشاہ نے سوچا جل جل گئے ہوں گے. بادشاہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. اس نے بلایا ادھر آؤ، یہ کتنے لوگ تم نے آگ کی بھٹی کے اندر ڈالے؟ اور انہوں نے کہا بادشاہ جیتا رہے، ہم نے 3 لوگ
लोग आग की भट्टी में डाले। सदरक, मिशक, अब्दुल-नजूर, ये तीनों आग की भट्टी में डाले। बादशाह ने ये कह रहा है कि मैं 4 लोगों को आग की भट्टी के अंदर चलते हुए और देख रहा हूं। और क्या बाइबल मुकद्दस का ये मुकाशवा है, और क्या बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है। वो ये लिखा 4 लोग आग की भट्टी के अंदर है, और लिखा ये चौथे की शक्ल कैसी है। और कलाम कह रहे हैं चौथे की शक्ल जो है वो अलाज़ादे की सी है। और इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स में इसका तर्जुमा ये किया गया है कि वो जो चौथा आग की भट्टी में आया है, वो चौथा सन ऑफ द गॉड है जो आग की भट्टी में आया है। अरे जिस खुदा की हम इबादत करते हैं और जिसके आगे दुआ करते हैं, आज से ये तहैया कर लीजिए, आपकी दुआ जिंदगी कम हो गई है। आप पहले बड़ी दुआ करने वाले थे, पर आप मायूस हो गए हैं, आपकी दुआ जिंदगी कम हो गई है। आज से दोबारा दाकिया सूरी में ये तहैया कीजिए कि मैं दुआ में ठहरूंगी, मैं दुआ में ठहरूंगा, मैं दुआ में ठहरूंगी, मैं दुआ में वक्त गुजारूंगा। मेरा खुदा सब कुछ करेगा, मेरा खुदा सब कुछ करेगा, मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, मेरा घर बदल जाएगा, मेरा घर तब्दील हो जाएगा, मेरा घर बदल जाएगा। मेरा खुदा जिंदा है। उसकी शक्ल अलाज़ादे की सी है। वो सन ऑफ द गॉड है जो अपने लोगों के लिए आग की भट्टी में भी उतर आया है। एक बार नहीं 12 मर्तबा अपनी जिंदगी से कई बार ये तजर्बे किए कि शायद ऐसा लगता है कि मेरे अपने किसी कामों के बायस वो मुझसे दूर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो क्या लिखा है कि वो कहर करने में, वो कहर करने में क्या है, वो सदा गजबनाक है, वो सदा गजबनाक नहीं रहेगा। वो जब भी हम पर कहर करना चाहता है, सुनिएगा जरा गौर से, वो जब भी हम पर कहर करना चाहता है, वो कहर करने से रुक जाता है, ठहर जाता है। इसकी 2 वजूहात है। वो क्यों कहर करने से रुक जाता है और क्यों अपना कहर नाज़िल करने से बाज रहता है। इसकी पहली वजह यह है, आपके लिए आसमानों पर किबरिया की दाहिनी तरफ कोई आपके लिए क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है। कोई आपका वकील बना हुआ है, कोई आपका वकील बना हुआ है, और जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। जब भी कहर में आता है, मैं इसकी अदालत करूंगा, मैं इसकी अदालत करूंगा, मैं इसे मुजरिम ठहराऊंगा, पर यीशु शिफायत कर रहा होता है। मैंने इनके लिए खून बहाया है, मैंने इनके लिए जान दी है, और राम किया जाए, राम किया जाए, इन पर राम किया जाए। ये बेटी मेरी असमत है, ये मेरी बेटी मुसरत है, ये मेरी बेटी फलां है, ये मेरा बेटा है, इस पर राम किया जाए। वो शिफायत कर रहा है, वो शिफायत कर रहा है, आपके लिए शिफायत कर रहा है। और उसकी शिफायत से आप पर खुदा का गजब नाज़िल होने से बाज रहता है। और इसकी दूसरी तफसीर, जब वो कहर नाज़िल करना चाहता है तो वो इसलिए कहर नहीं करता है, आपके बदनों के ऊपर रूहानी तौर पर, आपके बदनों के ऊपर वो अपने बेटे यीशु का खून देखता है। और जिस चीज पर यीशु का खून होगा वो खुदा के कहर और खुदा की अदालत से क्या होगा, वो बच जाएगा। क्योंकि जिन अदालतों में हमें गुजरना चाहिए था, हमारी जगह पर उन अदालतों में कौन गुजरा है? उन अदालतों में यीशु गुजर गया है, उन अदालतों में यीशु गुजर गया है, उन अदालतों में यीशु गुजर गया है, उन अदालतों में यीशु गुजर गया है। जब आपका ईमान कम होने को आए ना, तो रोमियो का खत निकालिए, 8वां बाब निकालिए, पहली आयत पढ़िए। पहली
पहली आयत इस तरह से है, बस अब, पुरानी बात नहीं, पुराने अहद वाली बात नहीं, बस अब आज उसका सलीब पर कफारा देने के बाद की बात अब है। पुराने अहद की बात कुछ और है, लेकिन मसलूबियत के बाद वाली बात जो है वो क्या है, अब है। अब जो मसीह यीशु में है, नहीं कोई ना कोई तो सजा है, कोई ना कोई तो सजा है ये सारी खत्म हो गई, और कोई भी उन पर सजा है ही नहीं। जो सवाल करे ना, भाई जी बाप दादा दियां सजावां साढ़े पीछे नहीं आंदियां, तो मैं उनको जवाब देता हूं, जब तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो उस वक्त तो पहली पूछ से, फिर दूसरी पूछ से, फिर तीसरी पूछ से, कुछ ऐसे गुनाह जो 7वीं पूछ से, कुछ ऐसे गुनाह जो 10वीं पूछ तक, और कुछ ऐसे गुनाह जो पुश्तों से भी पुश्तों तक चलते चले आ रहे हैं। पर जब आपने यीशु को कबूल किया है, जब आपने तौबा की है, बपतिस्मा ले लिया है, नए मखलूक बन गए हैं, तो बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी, आगे क्या है, उन पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। अपने ज़हन को बता दीजिए, दिल को बता दीजिए, और इब्लीस को बता दीजिए, अपने ज़हन को कह दीजिए मुझ पर कोई सजा नहीं है, अपने दिल को कहिए मैंने यीशु को कबूल किया हुआ है, मुझ पर कोई सजा नहीं है, और इब्लीस को बता दीजिए कि मैंने यीशु को कबूल किया हुआ है, मैंने कलाम को कबूल किया हुआ है, मैं कलाम पर ईमान लाया, मैं कलाम पर ईमान लाया, मैं कलाम पर ईमान लाया, और अब मुझ पर कोई भी कोई सजा का हुक्म मुझ पर नहीं है। सजा थी और वो सारी की सारी सजाएं तबादला होकर, और वो सारी की सारी सजाएं ट्रांसफर होकर, और वो सारी की सारी सजाएं बीच में कोई दरमियानी आया जिसने सारी सजाओं को अपने ऊपर उठा लिया है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबको